Good morning to my dear students. So students, in previous lecture we have studied about introduction to our surrounding. In previous lecture we have studied about introduction to our surrounding. In that topic we have saw about all those places which are surrounded us, which are near us, such as market, post office, bank, hospital, clinic, police office, etc. And then we have discussed about all those pictures. So the place near or around us are called our surrounding. जो जगह हमारे साइड में है we called it as our surrounding. Then we have discussed about 4 topic, that is market, post office, bank and hospital, clinic. Market, we buy fruits, vegetable, pulses, grain, meat, fish and other things from the market. We buy these things from the shop and stall in the market. Then in post office we have saw we got the post office to send letter. We buy stamp at the post office. We also send money and parcel by post. The postman bring our letters to our house. Then we have saw about bank. In bank we have saw we keep our money and jewelry in the bank. These days many ATMs are seen in the neighborhood. This machine allow people to take our money anytime. Then hospital, clinic, where we get hurt or fall ill, we go to hospital or clinic. The doctor and nurses here gives us medicine, takes our care and help us to get better. So in first picture we have saw that whenever we need fruit, vegetable, pulses, meat, fish, etc., we visit market. In market there are small shops and stalls. From all the small shops and stall we buy the fruits, vegetable, meat, fish, etc. So this was all about market. Then in post office we go to send letter or to take letter. We buy stamps from post office. The postman bring letter. पोस्ट ऑफिस में हम जब जाते हैं तभी हम पोस्ट ऑफिस लेटर देने के लिए या रिसीव करने के लिए, अगर हमें लेटर रिसीव करना है देन द पोस्टमैन जो है वो हमारे घर पे लेटर पार्सल कर लेता है. देन बैंक, इन बैंक वी गो टू डिपॉजिट मनी. हम बैंक में मनी रखने के लिए या निकालने के लिए जाते हैं. बैंक में हम ज्वेलरी भी रखते हैं. सो बैंक इज़ अ सेफ प्लेस वेयर वी कैन कीप अ मनी, ज्वेलरी एंड एक्सेट्रा. So in bank we go to remove money or to keep the money. Also we keep our jewelry in bank. Then if any emergency is there and bank is closed, we can remove our money through help of ATM. हम ATM से भी पैसा कभी भी निकाल सकते हैं. So bank help us in this type of way. Then hospital and clinic. Why do we visit hospital and clinic? When we get hurt or when we are caught in accident. जब हमें चोट पहुंचती है या हम किसी एक्सीडेंट में कॉट हो जाते तभी हम हॉस्पिटल में जाते. दैट टाइम वी गो टू हॉस्पिटल एंड इन हॉस्पिटल डॉक्टर गिव्स अस अ नाइस ट्रीटमेंट, नर्स टेक्स आवर केयर एंड दे गिव्स अस मेडिसिन रेगुलरली. सो दिस इज ऑल अबाउट हॉस्पिटल. सो दिस वी हैव सॉ इन आवर EVS combined book on page number 97. Then on page number 98 they have given us a picture and they have told us to describe that picture. So the first picture was about a railway station and below it was a booking office. So in first picture we can see a train, a time, a clock, a porter, a railway engine man, then there is a stall, there is a water, there is a benches, there is a public. Then in second we can see there is a booking office, people are booking the train, they are removing the ticket, you can see the TC, you can see the timetable, etc. So we have described that picture and we have wrote the picture is about railway station. There are many people on railway station. There is stall, booking office, timetable, water, porter, clock, platform number and train. So वो पिक्चर में हमने देखा वो पिक्चर रेलवे स्टेशन का था. वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और बुकिंग सेंटर है. So here we can see there is a stall, booking office, timetable, water, porter, clock, platform number and train. Now students, in your EVS combined book on page number 98 there is an activity given. The activity is
Name a surrounding place with the given clue and solve the word puzzle. The bus pick up passenger and drop at bus stop. The train arrives and departs at station. The children go to study here, school. The nurse and doctor look after the sick. It's hospital. People go for entertainment, it's theater, and people go to relax and play, it's park. So this we have studied in our previous lecture, that was introduction to our surrounding. So students, I hope you have understood previous lecture. Okay. So students, now kindly open your EVS combined book पेज नंबर 99. अभी आपका EVS का combined book का पेज नंबर 99 खोलो. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट इट. आज के लेक्चर में हम क्लासरूम डेकोरेशन ये टॉपिक देखने वाले. इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू सी क्लासरूम डेकोरेशन. सो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? ओके, सो ओपन योर पेज नंबर 99 of your EVS combined. So what is mean by classroom decoration? Classroom decoration यानी क्या? Classroom decoration means all those decorative things that we keep in a classroom, that we decorate in a class is known as classroom decoration. Classroom decoration यानी जो वस्तु, जो ऑब्जेक्ट, जो थिंग्स हम क्लासरूम में रखते हैं, क्लासरूम को डेकोरेट करते हैं, उसको ही हम क्लासरूम डेकोरेशन कहते हैं. जैसे कि इफ देयर इज़ अ क्लास, इन दैट क्लास वी रिक्वायर बुलेट्स बोर्ड, देन वी रिक्वायर डेकोरेटिव चार्ट्स, देन वी रिक्वायर बेंचेस, डेस्क, ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, डस्टबिन, बुक्स, पेन, पेंसिल, वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रूट्स चार्ट, फ्लावर्स चार्ट, नोट्स चार्ट, कैलेंडर एक्सेट्रा. तो ये सब चीज़ हमें क्लासरूम में चाहिए. ये सब चीज़ की ज़रूरत क्लासरूम में है. सो ऑल दोस थिंग्स लाइक, हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है? लाइक चार्ट्स, हमें चार्ट्स चाहिए. बुलेट्स बोर्ड यानी जो बोर्ड जिसके ऊपर हम पिक्चर्स को लगा सकते हैं. फिर बेंच, डेस्क, टीचर को बैठने के लिए डेस्क, बच्चों को बैठने के लिए बेंचेस, ब्लैक बोर्ड सिखाने के लिए, फिर उसके ऊपर लिखने के लिए चॉक, डस्टर. फिर यस, क्लासरूम में हमें स्पीकर चाहिए असेंबली के टाइम पे. फिर यस, फ्लावर्स डेकोरेटिव, तो एक्सेट्रा. ये सब की हमें क्लासरूम में ज़रूरत है. सो ऑल दिस थिंग्स वी नीड इन अ क्लासरूम. फिर वी नीड ऑल टाइप्स ऑफ चार्ट्स लाइक, अगर मैथ्स का कंसेप्ट है तो मैथ्स का चार्ट, टेबल्स, we require charts like table. If it's EVS, then to show environment we require that chart. If it's English, then all the alphabets. Then if it is Hindi, Marathi, then we need बाराखड़ी. So ये सब चार्ट्स हम प्रिपेयर करते हैं किसके ऊपर? चार्ट पेपर पे, कार्डबोर्ड पेपर पे प्रिपेयर करते. एंड देन वी स्टिक ऑल दोस चार्ट्स in a classroom, and whenever we get time we look on that charts and we recap what we have learned. So these all charts are also useful. So all these things are necessary in a classroom. Now you can see in your EVS combined book there is a picture given. वहाँ पे एक पिक्चर है, 2 पिक्चर है. उसमें एक पिक्चर जो है जो राइट हैंड साइड में है, वहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्लासरूम है. वो जो क्लासरूम है, वो क्लासरूम में आपको क्या क्या दिख रहा है? सो यू कैन सी देयर इज़ अ ब्लैक बोर्ड. वहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड है, आपको ब्लैक बोर्ड दिख रहा है? येस. फिर यू कैन सी देयर इज़ अ चार्ट ऑफ गर्ल, यानी बॉडी पार्ट सिखाने के टाइम पे ये चार्ट का इस्तेमाल हो सकते हैं. तो देयर इज़ अ चार्ट ऑफ अ गर्ल. देन उसके साइड में और एक चार्ट है वेयर देयर आर फ्लावर्स. ऑल्सो देयर इज़ वन मोर चार्ट वेयर देयर आर फ्लावर्स, वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. फिर वहाँ पे एक डेस्क है टीचर्स का. वहाँ डेस्क के ऊपर बुक्स है जो टीचर को पढ़ाने के लिए यूज़ रहते हैं और हमें वो लिखने के लिए रहते हैं. देन वहाँ पे एक फ्लावर पॉट है विच इज़ ऑल्सो नेसेसरी. फिर वहाँ पे एक पैर पोंछने के लिए है, यू कैन सी. येस. देन देयर आर बेंचेस, वहाँ पे बहुत सारे बेंचेस है. फिर और क्या क्या क्लासरूम में चाहिए? डस्टर, ब्लैक बोर्ड पे लिखने के बाद जो रफ करने के लिए डस्टर की ज़रूरत. देन चॉक. फिर आपको
कोई भी डे सेलिब्रेट करना हो, जैसे कि टीचर्स डे, स्टूडेंट्स डे, तो हम क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड क्लासरूम को डेकोरेट करते हैं। कैसे? तो अलग अलग पेपर्स का गार्लैंड बना के हम पूरे क्लासरूम को डेकोरेट करते हैं। सो दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड क्लासरूम डेकोरेशन। तो हम क्लासरूम कभी डेकोरेट करते हैं? व्हेन डू वी डेकोरेट अ क्लासरूम? व्हेन देयर इज एनी टाइप ऑफ ओकेशन, एनी सेलिब्रेटिंग डेज, लाइक टीचर्स डे। टीचर्स डे के दिन हम टीचर्स के सरप्राइज देने के लिए हम पूरा क्लासरूम को डेकोरेट करते हैं गार्लैंड फ्लावर से। फिर स्टूडेंट्स डे के लिए टीचर हमारे लिए ब्लैक बोर्ड पे हैप्पी चिल्ड्रंस डे लिखते, ब्लैक पूरा क्लास डेकोरेट करती है। फिर लाइक 15 अगस्त, दैट इज इंडिपेंडेंस डे, देन 26 जन रिपब्लिक डे। सो ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ डेज लाइक दिवाली, देन Christmas, Holi, we decorate our classroom. So that's what it's known as classroom decoration. So students, I hope you have understood what is meant by classroom decoration. Now students, in your EVS combined book on page number 99, they have given 2 picture. आपकी EVS combined book में पेज नंबर 99 पे उन्होंने 2 पिक्चर्स दिए. Which classroom do you like? Put a tick in the box below the picture. तो यहाँ पे 2 क्लासरूम दिए, उन्होंने बोला है दोनों क्लासरूम को आपको ऑब्जर्व करना है, आपको दोनों क्लासरूम को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, और जो क्लासरूम आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, वो क्लासरूम के नीचे बॉक्स दिया है, उसके नीचे आपको करेक्ट पुट करना है। तो पहला जो क्लासरूम है, द फर्स्ट क्लासरूम इज एम्प्टी, वहाँ पे कुछ भी डेकोरेटिव थिंग्स नहीं, नो चार्ट्स, नो बुक्स, नो फ्लावर वास, नथिंग इज देयर, ओनली बेंचेस, डेस्क एंड ब्लैक बोर्ड इज देयर। सो दैट क्लास इज लाइक, we don't like a simple class, we like a innovative class. हमें ऐसा सिंपल क्लास अच्छा नहीं लगता है, वो क्लास में पढ़ने के लिए मन नहीं करता है। We like the class in which there are various types of charts and that is decorated. So in second picture you can see the classroom is decorated with charts. Yes, there are various types of charts, there are books, there are flower vase. So फ्रॉम माई साइड आई लाइक द सेकेंड पिक्चर। जो आपको पिक्चर अच्छा लगे वो पिक्चर के नीचे आपको टिक मार्क करना है। सो फर्स्ट पिक्चर आई वॉन्ट टिक मार्क, आई विल टिक मार्क ऑन सेकेंड पिक्चर बिकॉज सेकेंड पिक्चर इज डेकोरेटेड एंड फर्स्ट पिक्चर इज नॉट डेकोरेटेड. सो इन फर्स्ट पिक्चर द क्लासरूम इज नॉट डेकोरेटेड and in second picture the classroom is decorated. So I have put a tick mark to a second picture in the box. You can see, yes, okay, so second picture you will put a tick mark. Okay, so you will complete this in your EVS combined book on page number 19. तो पेज नंबर 99 पे जो सेकंड पिक्चर है वहाँ पे आप टिक मार्क करने वाले हो. जो पिक्चर आपको अच्छा लगे वो पिक्चर के नीचे जो बॉक्स है उधर आप टिक मार्क करने वाले हो. ओके, नाउ लेट्स स्टूडेंट्स मूव फर्दर. नाउ ऑन पेज नंबर 99 दे हैव गिवन टिक द डिफरेंट थिंग्स यूज फॉर क्लासरूम डेकोरेशन. उन्होंने क्या बोला है? टिक द डिफरेंट थिंग्स यूज फॉर क्लासरूम डेकोरेशन. जो थिंग्स, जो वस्तु, जो ऑब्जेक्ट्स, जो थिंग्स हम क्लासरूम डेकोरेट के लिए यूज़ करते हैं वो पिक्चर्स आपको नीचे दिए हैं. उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये पिक्चर यूज़ करते हैं कि नहीं डेकोरेट के लिए. सो अगर वो पिक्चर आप कर रहे हो तो उसके नीचे आप बॉक्स के में आपको करेक्ट साइन पुट करनी है. सो नाउ यहाँ पे आपको पिक्चर्स प्रोवाइड किए. यहाँ पे उन्होंने 5 पिक्चर्स प्रोवाइड किए. सो हियर दे हैव प्रोवाइडेड 5 पिक्चर. फर्स्ट पिक्चर इज यस, जो जहाँ पे हम पैर को पोंछते हैं वो. देन सेकेंड पिक्चर इज ऑफ गार्लैंड, पेपर गार्लैंड. थर्ड पिक्चर इज ऑफ लैम्प. फोर्थ पिक्चर इज ऑफ चार्ट एंड फिफ्थ पिक्चर इज ऑफ फ्लावर्स वास. सो इसमें से कौन सा वस्तु या कौन सा ऑब्जेक्ट हम क्लासरूम में यूज़ करते हैं उसके नीचे आपको टिक करना है. सो फर्स्ट वन इज जो जिसके ऊपर हम पैर पोंछते. सो दिस थिंग्स वी कीप इन क्लासरूम. यस, सो यू विल पुट अ करेक्ट टिक मार्क. देन second picture, that is garland, paper garland. This we decorate na, with help of this we decorate our classroom na. Yes or no? Yes. During a children day or teacher day or any type of occasion, Diwali, Christmas, we use paper garland and we decorate our classroom. So you will put correct mark. And third one is lamp. Do you use lamp in class? No, so you won't put tick mark in that box. Then fourth picture, it's a chart. Yes, we put various types of charts in a classroom. हम अलग अलग charts classroom में लगाते हैं. So you will put tick. And the last picture is flower vase. Yes, we keep flowers vase on a teacher desk. So you will put a tick mark on it. So यहाँ पे हमने कौन से pictures को tick mark किया? We tick mark to first picture, then second picture,
then direct fourth picture and fifth picture. Third picture we have not tick mark because that we don't put or that we don't decorate in our classroom. So we decorate first picture, second picture, fourth picture and last picture. So you will put or you will complete this in your EVS combined book on page number 99. तो ये आप अपने EVS के combined book में पेज नंबर 99 पे कंप्लीट करने वाले हो. ओके. Now students, below that they have given paste the picture of some items that can be used for classroom decoration. तो यहाँ पे कौन से थिंग्स आप क्लासरूम में यूज़ करते हो या क्लासरूम डेकोरेशन में यूज़ करते हो वो पिक्चर्स का फोटो आपको नीचे डालना है, नीचे स्टिक करना है. सो विच ऑल पिक्चर वी यूज़? सो आई हैव स्टिक हियर blackboard, desks, chalk, benches, chair, yes, then books, pencil, bag, table, sharpener, pen and whiteboard. कोई क्लासरूम में वाइट बोर्ड रहता है, कोई क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड. तो ये सब पिक्चर हम क्लासरूम डेकोरेशन में यूज़ करते हैं. सो आई हैव स्टिक दिस पिक्चर इन EVS combined book on page number 99. So students, you will also stick this picture in your EVS combined book on page number 99. या तो आप ये वाला ड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो जो सिंपल है लाइक फ्लावर गार्लैंड, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, या तो आप पिक्चर ये स्टिक कर सकते हो, नहीं तो आप फ्लावर गार्लैंड का पिक्चर स्टिक कर सकते हो. देन वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट्स का पिक्चर स्टिक कर सकते हो. जो पिक्चर आपको अवेलेबल मिलेगा वो आप पिक्चर आपको स्टिक करना है. तो यहाँ पे आपको पिक्चर स्टिक करना है. कौन सा वाला पिक्चर? Those picture you see in classroom. So you have to stick all those pictures that you see in the class. जो पिक्चर आपको क्लासरूम में दिखते हैं वही पिक्चर आपको स्टिक करना है. So students, I hope you have understood today's lecture. So now students, let us recap what we have learned in today's lecture. In today's lecture we have saw about classroom decoration. In that we have saw there was 2 classroom given and from which we have to put a correct tick mark to the classroom which we like. So we have put to second picture a right tick. Then they have told to identify the things used for classroom decoration. So we have identified the things and we have put a tick like first picture, second picture, fourth picture and fifth picture. And then last that was paste picture of some items that can be used for classroom decoration. तो यहाँ पे आपको जो थिंग्स आप क्लासरूम डेकोरेशन में यूज़ करते हैं वो पिक्चर्स आपको स्टिक करने हैं. सो जो पिक्चर्स आपको मालूम है वो आपको यहाँ पे स्टिक करना है. सो दिस इज़ योर होमवर्क. सो स्टूडेंट्स, द होमवर्क इज़ यू विल कंप्लीट योर EVS कंबाइंड बुक पेज नंबर 99. आप अपनी EVS कंबाइंड बुक का पेज नंबर 99 कंप्लीट करने वाले हो. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पेज यू विल टेक फोटो ऑफ दिस पेज एंड यू विल सेंड इट टू मी. तो आप क्या करने वाले हो? आपको ये पेज कंप्लीट करना है. ये पेज नंबर 99 कंप्लीट करने के बाद ये पेज का फ़ोटो खींचना है. यू हैव टू टेक अ फोटो एंड यू हैव टू सेंड इट टू. तो आपको ये पूरा होमवर्क कंप्लीट करना है. आपको यहाँ पे पिक्चर भी स्टिक करना है. यू हैव टू स्टिक पिक्चर ऑल्सो. पिक्चर स्टिक करने के बाद ही आपका पूरा होमवर्क कंप्लीट होगा. फिर आपको ये पेज का फ़ोटो खींचना है और मुझे भेजना है. तो आप ये मुझे जब आपका कंप्लीट होगा तभी भी भेज सकते हो. जब आपका पूरा ये होमवर्क कंप्लीट होगा तभी आपको भेजना है. सो यू हैव टू कंप्लीट दिस एंड यू हैव टू सेंड इट टू मी. So students, I hope you have understood today's lecture. So students, thank you.